السلام علیکم۔ ہم جانیں گے شب معراج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک راتوں رات سفر کرایا اور اپنے بے شمار مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ اسی معراج میں 5 وقتوں کی نماز تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ اس سفر میں کیا کچھ پیش آیا، اس کی کہانی ہم جانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ باطل اپنا تمام حربہ استعمال کر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وار کو سہتے تھے، یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خالق و مالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اب تک اس قدر مصیبتیں برداشت کی تھی، وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اعزاز و اکرام سے نوازے۔ رجب کے مہینے کی 27ویں رات شب معراج، پیر کے دن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر معراج کا وہ تاج رکھا گیا جس نے پوری انسانی تاریخ میں انبیاء کرام سمیت نہ اب تک کسی کا سر مزین ہوا تھا، نہ آپ کے بعد ہوگا۔ اس رات شب معراج آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں حاضری اور ہم کلامی سمیت 7 آسمانوں کی سیر کی اور عجائب قدرت اور حقائق الہیہ کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اس سفر کو ابتدا سے انتہا اور پھر اس کے اثرات اس طرح سے ظاہر ہوئے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں حاتم میں خانہ کعبہ سے بالکل ملا کر زمزم کے کنویں سے قریب لٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر سینہ مبارک میں ایمان و حکمت اور نور بھر دیا گیا۔ پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو کہ اونچائی میں گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پر سوار کر دیا گیا۔ اس براق کا ہر قدم اپنے حد نگاہ پر پڑتا تھا اور اسی برف رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور مقصود صلی اللہ علیہ وسلم دونوں براق پر سوار ہیں۔ ان کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی مدینے کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ ان دونوں سواروں کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر طور پہاڑ کا وہ پیڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی، اس کے پاس نماز پڑھی۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
हम कलाम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तीसरी मंजिल बैतुल्लहम थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह वह मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। माह रजब की 27 शब और पीर की रात ने बैतुल मुकद्दस को अपनी आगोश में ले रखा था। लोग ख्वाबे गफलत में मदहोश थे। शहर की गहमा गहमी तारीकी में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदरूनी व बाहरी हिस्से निहायत खूबसूरत और पुरवकार चेहरे वाले बुजुर्गों से भरे हुए थे। सफ़र मेराज से पहले मस्जिद अक्सा में इमामत। यह सब बुजुर्ग सफ़े बांधे किसी के इंतज़ार में थे। इसी अंसाम में फ़ज़ा की तारीफ पहनाइयों से एक अजीब व गरीब सवारी उतरी हुई नज़र आती है, जिस पर मुनव्वर सूरतों वाले 2 सवार मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी से उतरकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। नमाजियों की सफ़े तैयार थी। हाँ, इमाम की जगह खाली थी। लोग मुंतज़िर हैं कि इमाम आगे बढ़े और नमाज शुरू हो। इतने में बुराक पर आने वाले 2 सवारों में से एक के साथी ने उनका हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाया और कहा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। शुरू से लेकर अब तक आने वाले तमाम अंबिया मुक्तदी हैं। मस्जिद अक्सा को यह शरफ हासिल है कि अंबियाए किराम इज्तिमा व सरजमीन पर हुआ और यहाँ वह नमाज पढ़ी गई जो अज़ल से अदब तक इमाम और मुक्तदी का लिहाज से अपनी नौइयात की सबसे अनोखी नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया इकराम से मुलाकात। नमाज के बाद इमामुल अंबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात को और अंबिया ने अपने अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान की। अंबिया बने इस मजमे से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खिताब करते हुए फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे खलील बनाया और मुझको मुल्के अज़ीम अता फरमाया और मुझको आतिश नमरूद की आग में, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डाले गए थे, आग से नजात दी और उसे मेरे लिए खुनक और सलामती का ज़रिया बनाया। हज़रत मूसा से कलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे कलाम किया, मुझको बरगुज़ीदा बनाया, मुझ पर तौरेत नाजिल फरमाई और फ़िरऔन को हलाकत और बनी इसराइल की नजात मेरे हाथ पर ज़ाहिर फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के हैं जिसने मुझको मुल्के अज़ीम अता फरमाया और मुझे ज़बूर का इल्म नसीब फरमाया और मेरे लिए लोहे को नर्म किया और मेरे लिए पहाड़ों और परिंदों को मुख्तसर किया कि वह मेरे साथ तस्बीह करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे लिए वहाँ को मुख्तसर किया और शैतानों को भी मुख्तसर किया कि जो चीज़ मैं चाहता था वो बनाते थे और मुझको परिंदों की बोली का इल्म दिया और मेरे लिए शयातीन और इंसान और जिन्न के लश्करों को मुख्तसर किया और मुझको ऐसी सल्तनत बख्शी कि मेरे बाद किसी के लिए शयाने शान न होगी। तमाम हमदो उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरकत के लिए जिसने मुझको अपना कलमा बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह बना दिया और मुझको हिकमत, तौरत और इंजिल का इल्म दिया और मुझको ऐसा बनाया कि मैं
मिट्टी से परिंदे की शक्ल का कालब बनाकर उसमें फूंक मारता तो वह अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता, और मुझको बनाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे को आँख वाला और कोढ़ी को अच्छा कर देता था। मुझको पाक किया और मुझे और मेरी वालिदा को शैतान से पनाह दी। शबे महराज। फिर आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब ने अपने रब की सना की, अब मैं भी अपने रब की हम्दो सना करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने मुझको रहमतुल लिल आलमीन और तमाम आलम के लिए बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। मुझ पर फुरकान यानी कि कुरान मजीद नाजिल किया, जिसमें हर अम्र का बयान है, और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया कि लोगों के फ़ायदे के लिए पैदा किया, और मेरी उम्मत को उम्मत अदलिया बनाया, और मेरी उम्मत को ऐसा बनाया कि वह अव्वल भी और आखिर भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन मस्जिद से बाहर निकले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक प्याला दूध का और एक प्याला शराब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को मुंतखब फरमाया। जिब्राइल अमीन फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को इख्तियार फरमाया। मस्जिद अक्सा से निकलते वक्त जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई। उस सीढ़ी के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे। फिर वह सीढ़ी आसमान पर रखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे, और इसी तरह दर्जा ब दर्जा सातवें आसमान पर। सातों आसमानों की सैर। पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत आदम के दाहिने तरफ कुछ सूरतें थी जिन्हें देखते तो मुस्कुराते, और बाईं तरफ कुछ सूरतें थी जिन्हें देखते तो कुछ रोते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि दाई जानिब वाली सूरतें जन्नतियों की है और बाईं जानिब वाली दोज़खियों की। मेराज के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। पाँचवें आसमान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने किया। छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल एक ऐसी शख्सियत ने किया जो शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल से मुशाबेह थी। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। सातवें आसमान पर एक अज़ीमुश्शान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और क़यामत तक किसी फरिश्ते को दोबारा तवाफ़ करने की नौबत नहीं आएगी। सिदरातुल मुंतहा। इन मराहिल से गुज़रकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ तमाम मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। वह जगह खालिक और उसकी मखलूक के दरमियान हद्दे फासिल की हैसियत रखती है। इस जगह को सिदरातुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। इसके आगे क्या है इसका इल्म अल्लाह को है, या फिर अल्लाह जिसे अपने मर्जी से इसका इल्म दे दे। सिदरातुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं। 2 नहरें ज़ाहिरी और 2 बातिनी। बातिनी नहरें तस्लीम और सलसबील है जो जन्नत में गिरती हैं, और ज़ाहिरी नहूरे नील और फुरात है जो ज़मीन पर गिरती हैं।
इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ सुनहरे परों वाले नन्हे परिंदे आते हैं और परवाने की तरह सिदरह पर निसार होते हैं। सिदरातुल मुंतहा क्या है? सिदरातुल मुंतहा वह जगह है जहाँ से एक कदम भी आगे बढ़े तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर जलने लगते हैं। जिब्राइल अमीन बेबस खड़े हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आगे जाना है। जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे आपका और आपके रब का मामला है। मेरा मकाम यही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े। यह वह जगह है जहाँ किसी के तसव्वुर ने भी कदम नहीं रखा। उसके आगे जो कुछ हुआ उसका बखूबी इल्म महबूबे किबरिया और खाली के दो जहां को ही है। एक ऊंची और हमवार सतह पर पहुँचे तो सामने अल्लाह के जलाल की बारगाह थी। हम कलामी का शरफ बख्शा गया और जो कुछ इरशाद हुआ उनमें से चंद यह है। शबे मेराज का तोहफा। हर रोज़ 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई। सूरह बकरह की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की बख्शिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। उस अमल पर नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों का सवाब मिलता है। मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वह उस पर अमल कर लेता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाही इलाही से वापस लौटे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्हीं ने बने इसराइल के तजर्बे का हवाला देते हुए नमाजी की तादाद कम करने की दरख्वास्त की और इस तरह धीरे धीरे 5 नमाजें एक दिन में फ़र्ज हुई। सफ़र की वापसी पर नमाज। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ज़रिए मस्जिद अक्सा तशरीफ़ लाए। वहाँ फिर से तमाम अंबियाए किराम मौजूद थे। सफ़े आरास्ता थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का-ए मुअज़्ज़मा पहुँच गए। इस मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब-ए कुदरत का मुशाहदा किया। कुछ वाक़यात आसमान पर जाने से कल्ब और कुछ बात के हैं। इस सफ़र के दौरान एक जगह किसी ने पुकार कर कहा, इधर आओ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो न दी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई तवज्जो न दी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाईयत की तरफ बुला रहा था। एक औरत बहुत बनी सबरी नज़र आई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नज़र फेर ली। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, यह दुनियादारी थी। एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की बाकी उम्र का अंदाज़ा औरत की उम्र से कर लीजिए। मेराज का सफ़र, अच्छे और बुरे अमाल की सज़ा। इस सफ़र शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा को तमसील के ज़रिए दिखाया गया। कुछ लोग खोती काट रहे हैं, मगर जितनी काटते जाती हैं वह उतनी ही बढ़ती जाती है। पूछा, यह कौन लोग हैं? कहा, यह अल्लाह की राह में जिहाद न करने वाले हैं। कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं।
पूछा यह कौन लोग हैं? अर्ज किया गया कि वह लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए रब के आगे नहीं झुकते थे। कुछ लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे पीछे पैबंद लगे हैं, वह जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा यह कौन लोग हैं? बताया गया कि यह लोग वह है जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ नहीं देते थे। एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है, और जब वह नहीं उठाता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा यह कौन है? जवाब दिया गया कि यह वह शख्स है जिस पर अमानतों का और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा न सकता था, मगर यह उनको कम करने के बजाय और ज़्यादा करता चला जा रहा है। कुछ लोगों की ज़बानें और होठ कैंची से कतरे जा रहे थे। पूछा कि यह कौन है? अर्ज किया गया कि यह गैर जिम्मेदार मुकर्रिर है जो बेतकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते थे। जुबा दराजी का नतीजा। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शिगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा बैल निकल आया। फिर वह बैल उसी शिगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा, मगर जा न सका। पूछा यह मामला क्या है? कहा गया यह दस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना पैदा करने वाली बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसे वापस लेना चाहता है, मगर यह नहीं कर पाता। कुछ लोग अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा यह कौन है? कहा गया कि दूसरों पर जुबान दराजी और ताना करते थे। कुछ लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वह अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। पूछा यह कौन है? जवाब में अर्ज किया गया कि यह वह है जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ लोग जिनके होंठ ऊंट की तरह थे और वह आग खा रहे थे। पूछा यह कौन है? कहा गया कि यह यतीमों का माल हजम कर जाते थे। सूद ब्याज खाने वालों का अंजाम। कुछ लोग थे जिनके पेट बहुत ज़्यादा बड़े और सांपों से भरे थे। आने जाने वाले उनको रोनते हुए गुजर जाते थे, मगर वह अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। पूछा यह कौन है? अर्ज किया गया कि सूद खाने वाले हैं। कुछ लोग थे जिनके एक तरफ अच्छा गोश्त रखा हुआ था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वह अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा गोश्त खा रहे थे। पूछा यह कौन है? कहा गया यह वह मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। इस सफ़र में वाक़ियात, हक़ाइक़, शर्फ़े हम कलामी और दीदारे इलाही से मुशर्रफ होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। इस सफ़र की पूरी रुदात उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा को सुनाई, जिन्हें ताज्जुब की वजह से सकता हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आपकी चादर पकड़ ली और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वास्ते यह किस्सा लोगों को मत सुनाइएगा, वरना उन्हें मजाक उड़ाने का एक और मौका हाथ आ जाएगा। आपने फरमाया, मैं ज़रूर यह वाक़या बयान करूँगा, और बाहर तशरीफ़ ले गए। मेराज के सफ़र की तस्दीक। सुबह का वक्त था और धूप निकली हुई थी। हरमे काबा में कुफ़ार की महफिल लगी थी। अबू जहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखकर दिल लगी के से अंदाज में कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ताज़ा खबर सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात शब मेराज की मुकम्मल
रुदात सुनाई। फिर क्या था? अबू जहल के हाथ में एक शोशा आ गया और उसने लोगों को गुमराह करने की मुहिम शुरू कर दी। अबू जहल की सरकर्दगी में एक गिरोह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास यह उम्मीद लेकर पहुंचा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हैरतनाक वाक़ये का इनकार कर दिया तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर टूट जाएगी और इस्लाम दम तोड़ देगा। गिरोह के एक शख्स ने कहा कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुमने सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात मुझे बैतुल मुक़द्दस और तमाम आसमानों की सैर कराई गई। फिर अबू बकर ने उन्हें फ़ौरन से जवाब दिया कि अगर ये कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो फिर ये झूठ हरगिज़ नहीं हो सकता और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, चाहे ये बात अक्ल में आए या न आए। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक, मतलब सच को कबूल करने वाला, सच की हिमायत करने वाला। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहलाने लगे। ये था हमारा आज का मेराज के सफ़र का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।